सारे पॉडकास्ट वो लोग को लाते हैं जो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वो कम्युनिटी को लाएं जो बोल ही नहीं सकते। वेलकम टू रीथिंक इंडिया। हम बाकी पॉडकास्ट की तरह सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, उन लोगों को भी प्लेटफॉर्म देते हैं जिनको यूजुअली कोई और प्लेटफॉर्म नहीं देता। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मिस्टर राजीव गुप्ता से, हु इज डेफ एंड म्यूट सिंस बर्थ। मैं इन्हें एक फेस्ट में मिला जहां इन्होंने मुझे समझाया कि वो मेरे वीडियो देखने के बाद वो पैकेज फूड खाना छोड़ दिए। फिर मैंने उन्हें ये पॉडकास्ट में बुलाया। Thank you to Zerodha's Media Network 01 for supporting this network and making this entire show possible. Thank you so much for coming. बहुत अच्छा लग रहा है आपको। Thank you so much. Thank you so much for addressing this problem, because this was a topic which no one was talking about already, and you giving us this opportunity to represent all the deaf community, it really means us a lot. Thank you. तो सबसे पहले मुझे पूछना है कि क्या शब्द आप लोग के लिए अप्रोप्रिएट है, लाइक इज यूजिंग द वर्ड डेफ फाइन? व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज विच चलेगा? It's deaf and mute. The appropriate words are deaf and mute. Okay. So that's a misconception people have कि it's deaf and dumb. And people don't even know about कि it's deaf and mute and not deaf and dumb. So yeah, that's one correction I would like to mention in this. So अगर कोई deaf and dumb बोल रहा है वो गलत phrasing है, वो politically incorrect है। Yes, you can state कि अपन किसी को rudely बोल रहे हैं कि are you, मतलब अपन जैसे abuse कर रहे हैं. It's kind of like that. So it's yeah. But mute बोलना चल. Yes, deaf and mute. This is the appropriate. Like we say, person with disabilities and not disabled इंसान है. So that's like the appropriate way of saying it. जो लोग अभी तक नहीं समझे, आज हमारे साथ दो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। पहले है मिस्टर राजीव गुप्ता जो डेफ एंड म्यूट हैं, एंड सेकंड हैं उनके सन पराग, एंड ये पूरे लाइफ इनके इंटरप्रेटर रहे हैं। Yes. Right from the age of 4-5? Yes, and my sister as well. Okay, nice. मैं पॉज करते रहूंगा बीच बीच में ताकि इन्हें भी टाइम मिले। एंड तो आज हम इनसे सीखेंगे डेफ एंड म्यूट कम्युनिटी के बारे में, इंडिया में कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है, क्या बेटर कर सकते हैं एज अ कंट्री, हम होल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एंड ऑल ऑफ दैट। Before we start, we would like to give you this T-shirt. Especially, we got it made for you. Wow. So yeah. Thank you so much. So it says food farmer in English. Yeah. So it says food farmer in English as well as in sign language. And wow. Yeah, we would love for you to wear this for this podcast. And on the back we have your. Okay, so food farmer and sign language में भी. Yes, it's food FOOD farmer. Nice. Yeah, in sign language. And behind this we have your label Padega India. Oh wow. So we would love for you to wear this if you could. Sure, I'll just wear it right now. एकदम सही फिट हो गया. It feels really good. पापा बहुत खुश हैं. ऐसे फर्स्ट टाइम किसी लाइक वेरी किसी सेलिब्रिटी को ये ऐसा कुछ दे रहे हैं. सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर यू कैन से. ऐसे कभी मिलते नहीं है पापा यूजुअली, सो इट रियली फील्स गुड टू हिम. थैंक यू सो मच ये गिफ्ट के लिए. इट मीन्स अ लॉट टू मी. And slowly he's saying you can also learn A, B, C, D, the basic alphabets of sign language. Sure, आप मतलब ये होगा ये शो में ही ट्राई करते हैं कभी. If you like meet some other deaf person, so it will be easy. I know basic ABCDs. Sure, we'll do that.
तो मुझे जानना है व्हाट एज पता चला कि ही इज एसेंशियली इनको ये हियरिंग का इश्यूज है. It was around when he was one. Actually हुआ क्या था, he fell very sick around 104 105 degree का कुछ शायद fever था, he mentioned 105 he's saying, like Wow. right after he was born. So internal damage हो गया होगा, but because it's not, मतलब दिखाई नहीं देता है कि अंदर क्या damage हुआ है. So after recovering people thought, मतलब my grandparents thought कि it's normal only, but after the age of 1 when वो respond नहीं कर रहे थे to different sounds या कुछ reaction, कुछ भी गिर रहा है तो रोने की आवाज़ या डरने की आवाज़, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, then something felt off कि कुछ तो गलत है, then वो पूरा start हुआ. So इनके केस में या इन जनरल भी once parents find out कि उनका बच्चे को hearing में difficulties हैं या वो deaf हैं, like the kid is deaf, तो how do they typically react? वो of course आप potentially upset होते होंगे, but like how do they potentially react? What was his parents' reaction basically? He doesn't really remember कि क्या था, मतलब मम्मी का तो थोड़ा आइडिया है. So it's very shocking for the parents and very hard for them to accept this first of all कि their child is deaf and mute, and given that कि society का भी फिर बहुत ज़्यादा एंगल आ जाता है कि from the very first day कि अगर अच्छा when they get to know कि अच्छा the child is deaf and mute, तो इसका आगे का पूरा projection वो फिर they try to project it कि इसका तो यही options है अब. So they kind of get, because of the society as well, the parents feel very upset and they have lost hopes because of that. But in his case and my mother's case, it was very, I would say, बहुत बहुत lucky थे क्योंकि my grandparents and maternal grandparents both were very supportive for both of them. Like मेरे दादा was a professor and दादी was a doctor, and मेरे नाना नानी ने भी मम्मी को बहुत help किया. They didn't stop her to do anything. They pushed her in every space and all. That's a really important factor if you are raising a deaf and mute child. So despite of that difficulty कि उनका बच्चा deaf and mute है, they didn't let the societal angle come in. They still force their children, push their children कि you do your thing and try your best, that kind of thing. आपके केस में आप जो स्कूल गए वो एक रेगुलर स्कूल था या वो स्पेसिफिकली लाइक डेफ लोगों के लिए था? When he was 5 he started, मतलब इनका जो स्कूल चालू हुआ था वो 5 years की एज में हुआ था. It was for deaf and mute, special education ही था वो, for deaf and mute children only. And how does a school which is for deaf and mute, how is it different from a regular school? So deaf school में it's just all the students are deaf and mute, and जो teachers होते हैं they very little bit they know sign language. They also, that's also a problem कि जो teachers होते हैं special education में भी, they are not fully equipped. Many of them are not fully equipped with the sign language, the standard sign language which is required for them to teach. They just they take the oralist approach, and that's also very different कि आप board पे अगर oralist lip reading भी अगर आप उनको सिखा रहे हो तो if they are teaching something on the board, they are facing it there and then lip reading, then how will the deaf child will know कि what you are saying and all. उस टाइम पे it was just copy paste कि आपको जो दिखा दिया बोर्ड पे आपको उसको एग्जाम में copy paste करना है and you have to just pass. That was the situation in his case. तो वो एक्चुअली सिखा नहीं रहे हैं, वो बस आपको रटना सिखा रहे हैं. Like एकदम point to point, even if something is a little bit off, that's fine, लेकिन आपको वही उसी चीज से stick करना है. You can't think something खुद से and then write. ऐसा कोई option नहीं था, because first of all they are not taught enough कि वो खुद से कुछ लिख सके. They only want कि जो मैंने सिखाया है, हमने सिखाया है, वही आप लिख के आओ and just pass. पापा के केस में तो he was very eager to learn a lot कि मेरे को सीखना है, पढ़ाई करनी है, but infrastructure is not like that कि they can make the most out of it. So education system basically for deaf and mute is very broken, you are saying? Yes, you can say like that. Long when he was a child, then that was the case. Abhi we are not very sure. So अगर education system broken है, I want to understand then the job market. क्या type का jobs available होता है for deaf and mute people?
it's majorly blue collar jobs, you can say. Category is like, it's only C and D category if you have to categorize it. तो A B C D में it's like C and D category, you can say blue collar jobs. इनके टाइम पे usually phone booths होते थे बहुत सारे, या किराने की दुकान पे होते थे, तो families used to think कि अच्छा बोल सुन नहीं सकता है तो इसको अपनी दुकान पे बैठा दो या फोन बूथ पे बैठा दो. जो अपना मैनेज करते थे, फोन बूथ अलग अलग जगह पे लगे होते थे बहुत सारे, तो उसमें आप बस सिक्का डालो एंड देन यू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. तो दोज ऑप्शंस वर देयर उस टाइम पे. तो आपने स्कूल जब किया उसके बाद आपने कोई पर्टिकुलर जॉब किया था, या क्या आप अभी कोई जॉब करते हो? लाइक फ्रॉम फर्स्ट टिल 10th क्लास तक. उसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग विद प्राइवेट स्टेशनरी, मतलब काइंड ऑफ थिंग, दादा के रेफरेंस से. तो लाइक स्टेशनरी होती है जहाँ पे जो टाइपिंग का काम था मेजरली, ही स्टार्टेड विद दैट. एंड इट वाज इन दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के पास में एक स्टेशनरी होती थी, तो वहाँ पे यूज्ड टू टाइप अ लॉट, क्या कहते हैं, जो थीसिस काफी सारे बच्चों की आती थी, तो यूज्ड टू ट्रांसलेट इट, टाइप इट डाउन ऑन द कंप्यूटर फॉर देम. लाइक द करेक्शंस एंड ऑल, यूज्ड टू मेक वो सारे करेक्शंस एंड फिर प्रिंट करके उनको वापस अपनी थीसिस दे देते थे. 5 साल तक काम किया था उन्होंने फॉर दैट प्राइवेट वाला थिंग. आफ्टर दैट it was a travel agency, private travel agency, I would not like to name it. And उसमें जो मेरी बुआ है, his elder sister, उनके help से he got there वहाँ पे काम करने के लिए. And computer related work was operations. They kind of exploited him कि his work was really good. They didn't confirm him, लेकिन इनको as an intern रखा वहाँ पे, and they only paid him stipend for 3 years and they didn't fire him because काम अच्छा था इनका. And basically क्योंकि अगर वो इनको employ कर लेते तो rules against termination for deaf disability and all were very strict. So they didn't want to confirm कि नहीं, अगर confirm कर दिया तो termination will be very difficult. तो इनको as an intern ही रखा for 3 years. He was paid stipend. His work was really good कि उनको रखना था, लेकिन कंफर्म भी नहीं करना था क्योंकि फिर टर्मिनेशन में दिक्कत होती या फिर ज़्यादा पे देना पड़ेगा. That's really sad. Yes, so that was then. And after that, when he left that private travel agency, then he joined an NGO. That was Bodh Shiksha Samiti. So that was a very good place. He was treated very well there. जो boss थे NGO के, he was very supportive when he applied there. वहाँ पे जो भी post opening थी, तो when he saw the application that this person is deaf and mute, तो he was very interested कि नहीं चलो let's support him, let's see क्या करते हैं वो. तो he invited, he saw his work and then he hired him. So that was his proper official employed job. सब accounts वो संभालते थे for 8 years. Wow. देन उसके बाद गवर्नमेंट जॉब पापा की लगी. लाइक ही सॉ पोस्टिंग कि गवर्नमेंट जॉब में ओपनिंग है. वहाँ पे वन ऑफ आवर रिलेटिव्स इन्फॉर्म्ड अस कि यहाँ पे आपके एरिया में एक पोस्टिंग है. कौन सा गवर्नमेंट जॉब था? यस, सो ही इन्फॉर्म्ड अस कि ये ओपनिंग है, यू शुड अप्लाई फॉर इट. तो उन्होंने अप्लाई किया, देखा पहले एंड अप्लाइड फॉर इट एंड ही वेंट देयर फॉर द इंटरव्यू. उसके लिए उनको अपना अंडरग्रेड भी करना था, तो ही कंप्लीटेड हिज अंडरग्रेड एक ओपन कॉलेज से. देन ही वाज एलिजिबल. The problem he wanted to leave वो वाला NGO was कि वो contractual basis पे होता था, and जैसे project basis पे चलते थे, अगर एक project खत्म तो उसके बाद security नहीं होती थी कि if he'll still stay employed or not. तो because of that insecurity वो उन्होंने prefer किया switch करना. And when he left वहाँ पे the boss didn't want him to go, he wanted him to stay but he understood his concern as well. So yes. So he let him go and that's when he started with his government job as well. Nice, amazing. Right now he's assistant programmer and it's also computer based work only. The government job पे जो role है, he is at the posting of assistant programmer. Okay. Yes. Congratulations, and आपका journey बहुत inspiring है. Like he switched 4 jobs and total working years as of now are 30. Like 4 jobs में 30 साल इन्होंने complete किए.
लाइक ऐसा नहीं बार बार स्विच करते रहे जॉब या फिर फायर हो गया. हिज वर्क वाज रियली गुड कि सिर्फ पूरे 30 साल के करियर की जर्नी में इट वाज ओनली 4 जॉब स्विच. आजकल लोग मतलब 2-3 साल में ही 4 जॉब स्विच करते हैं, आप 30 साल में 4 जॉब स्विच किए हैं. बाकी जो डेफ एंड म्यूट कम्युनिटी भी है उनको भी इतना एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो दे कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग एक्सेप्ट हियर. डेफ पर्सन कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट हियर. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज दोगे जैसे अपन नॉर्मल लोगों को मिलती है, यू कैन ऑप्ट फॉर साइंस कॉमर्स एंड ऑल, दे डोंट हैव दैट ऑप्शन कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है नहीं जाना है. तो दे आर ओनली गिवन कुछ 1-2 ऑप्शन, 3-4 ऑप्शंस, उसमें से ही जाना होता है. बट बिकॉज हिज फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव एंड दोनों साइड से, दैट्स व्हाई ही इज नाउ हियर एंड मेड अस आल्सो केपेबल कि हम यहाँ पे आज बैठे एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग द होल डेफ कम्युनिटी. एंड ही लव्स कंप्यूटर रिलेटेड वर्क. लाइक इनको पसंद है पापा को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठ के काम करना. सो ही लव्स अकाउंटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड वो शौक भी कैसे चालू हुआ था, फर्स्ट टाइम दादा ने जर्मनी से एक कंप्यूटर लाए थे. तो बिकॉज ही वॉज अ प्रोफेसर तो वो एक कंप्यूटर लाए थे खरीद के. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था वो कंप्यूटर एंड तब से चालू हो गया शौक कि कंप्यूटर मेरे को सीखना है. तो तब से वो जर्नी चालू हुई. अमेजिंग. आपका जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है. एक चीज़ आप सब लोग को बोल दूं, जो लोग भी ये देख रहे हैं, बैंगलोर में वहाँ एक फेस्ट हो रहा था, 01 फेस्ट. वहाँ पर मैंने इन लोग को मिला था. इन्होंने मुझे बोला कि हाउ he told me, Parag told me that how his dad was watching my videos and has helped him eat healthier. And तो मैंने उनसे बात किया. then I realized कि why don't I call him and give him a platform to share his entire journey with all of us. वो इवेंट में मिला, मुझे लगा इतना सारा स्टोरीज होगा इनके पास. And I always say this one thing कि I don't understand why all podcasts only call biggest celebrities who already have a lot of platform. उनके पास already बहुत जगह है इंटरव्यू देने के लिए. तो why don't we call people who do not have a platform? तो इसलिए ये एक शो रीथिंक इंडिया का एक पर्पस है. हम सेलिब्रिटी को भी बुलाते हैं लेकिन हम बाकी सब लोग को भी बुलाते हैं. एक इवनली सब लोग को एक स्पेस मिलता है. That's the best thing about Rethink India. Honestly, I really love the concept. मैंने पहले भी वीडियोस देखी थी and 01 Fest में आके I was like, this could be a way, to represent the deaf community. So again, thank you so much for this. So मुझे आपसे जानना है, आपने साइन लैंग्वेज कैसे सीखा, कब सीखा? First, it was in school only. एंड पेरेंट्स से जो बात होती थी उस टाइम पे इट वाज जस्ट बेसिक्स कि खाना खा लिया, पढ़ाई कर ली. देयर वाज नो इंटरेक्शन विद पेरेंट्स लाइक द ABCs एंड ऑल प्रॉपर इंडियन साइन लैंग्वेज इफ यू टॉक अबाउट, वो भी नहीं थी. बट बेसिक जो अपन एक घर में घरेलू लैंग्वेज जो बोलते हैं उसमें बात करती थी दादी तो फ्रीक्वेंटली. दादा के केस में तो क्योंकि बिजी रहते थे वो, तो इतना इंटरेक्शन नहीं होता था. क्योंकि इतना इंटरेक्शन नहीं है, डज दैट आल्सो इम्पैक्ट द क्लोजनेस? वैसा कुछ फर्क पड़ा? यस, यू कैन से they were all both working professionals, so घर पे भी कम रहते थे. it was very कम बातचीत and थोड़ी बहुत होती थी for formality I would say, but क्या कहते हैं, just to check into him कि हाँ खाना वाना खा लिया, थोड़ा कर ली बातचीत. that was it. and because of that only जो social life भी होती है deaf and mute community की, it's very poor. like it's only school में and beyond that जो बड़ों से advice लेना होता है, सीख मिलती है, या सिबलिंग से भी होती है, वो बहुत कम हो जाती है. in his case both my buas were very supportive. they pushed him a lot into trying different stuff and they helped him a lot with this. लेकिन काफ़ी सारी families में अगर एक ही single deaf child है तो they are just left in school and वहाँ पे भी ऐसा environment नहीं होता जहाँ पे वो एकदम outgrow कर सके. तो क्या आपके स्कूल के बाहर कुछ फ्रेंड्स थे जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते थे? घर के आसपास तो कोई भी नहीं था, बस स्कूल में होता था कि ओके देयर आर पीपल जस्ट लाइक मी जो साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो स्कूल में ही बात होती थी एंड उसके बाद तो फिर घर चल जाते थे. तो लोग बोलते हैं कि अगर आपका एक सेंस एक्टिव नहीं है तो आपके बाकी सेंसेस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. सो इज दैट ट्रू? इज इट ट्रू दैट आपके बाकी सेंसेस और भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं? Like with him in his case, तो visually he is like more alert, more active. So because इनका hearing का कोई they can't rely on ears, तो पूरा इनका visually he is completely alert. Like मम्मी पापा majorly जितने भी deaf community में लोग होते हैं they are visually very alert. So eyes are even more powerful. क्या deaf people क्या वो गाड़ी चला सकते हैं?
क्या उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड है, एंड क्या डेफ पीपल गाड़ी चलाना सेफ होता है या नहीं? उसमें भी बाइफर्केशन है. डेफ पीपल डू ड्राइव, नॉट डेफ, आई वुड से पीपल हु आर ऑफ हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनका कोई पार्शियली डेफनेस है, लेट्स से अप टू द एक्सटेंट ऑफ 30-40% जिनका डेफनेस है, दोज पीपल आर अलाउड विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड्स. लेकिन जैसे पापा के केस में इट्स बियॉन्ड 70%, सो इट्स लाइक कंप्लीट डेफनेस इट्स कंसिडर्ड. तो उस केस में इनको अलाउड नहीं होता ड्राइविंग लाइसेंस. अगर आप बात करो नॉट प्रोवाइडिंग डेफ पीपल अ ड्राइविंग लाइसेंस इज मेकिंग देम मोर डिपेंडेंट ऑन टू अदर्स. अगर वो साइन लैंग्वेज में सामने वाला बात नहीं कर सकता है एंड यू आर नॉट अलाउिंग देम ड्राइविंग लाइसेंस, तो अब वो ऑटो वाले से कैसे बात करेंगे, उबर बुक करके उसको कैसे बताएंगे कि हमें इस लोकेशन पे आना है, उधर जाना है. तो यू आर मेकिंग देम मोर डिपेंडेंट ऑन पीपल एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देयर कन्वीनियंस. अगर आप एक ड्राइविंग लाइसेंस दे दोगे तो इट विल मेक इट वेरी इजी फॉर देम कि अपनी गाड़ी उठाइए एंड जाके वहां पे अपना काम करके आए. So that's why एक नीड है वो पेरेंट्स की. So आप बेसिकली बोल रहे हो डेफ पीपल शुड बी अलाउड टू ड्राइव अ कार? Yes. Like in different countries it's already allowed. अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पास हुआ है कि डेफ पीपल शुड बी अलाउड टू ड्राइव, बट अब सरकारी काम में नेवर नो कितना टाइम लगेगा उसको ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट होने में. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो एग्जीक्यूट हो, एंड इट्स फॉर कंप्लीट डेफनेस, नॉट पार्शियल वाला. क्योंकि पार्शियल वाला तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि आपको अगर 30-50% डेफनेस है, यू कैन हैव अ मशीन एंड देन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग टेस्ट. सो इसमें आदेर की लाइक फॉर एग्जांपल गाड़ी में लोग हॉन्क करते हैं, एम्बुलेंस होता है, तो वो सब कैसे काम होता है? आपने कितनी बार लोगों को सड़क पे बोलते हुए सुना है कि गाड़ी सुन के चला? We often say, every time we say गाड़ी देख के नहीं चला सकता क्या? So that's a thing to note कि deafness doesn't has to do anything with driving की वो problem करेगा. Regarding honking, you can just add a small sticker on the back of your car, जैसे learning का होता है, just add a sticker that this person is deaf. So उस इंसान को भी पता होगा अच्छा deaf है, कोई मतलब नहीं है, we can use a dipper instead. So dipper तो visually दिखता ही है, light तो आ रही है आँख में. एंड लोग तो रेड लाइट पे खड़े खड़े हॉर्न दे रहे होते हैं, तो उसको वैसे भी अपने को इग्नोर करना ही होता है. एंड ऑल्सो यू नो कि लोग गाड़ी में गाने जोर जोर से फाड़ फाड़ के चला रहे होते हैं, ईयरफोन्स लगा के चला रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन डेफ लोगों के साथ ये पॉसिबल ही नहीं है. लाइक दे कांट टॉक ऑन फोन, दे कांट लिसन टू म्यूजिक, सो दे आर completely focused on the road. जो मेजर एक्सीडेंट्स भी होता है आर बिकॉज ऑफ दोज पीपल जो सुन सकते हैं. तो आप बोल रहे हो बेसिकली कि वो क्योंकि डेफ पीपल ज्यादा विजुअली अलर्ट रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होता है, तो पोटेंशियली दे मे इवन ड्राइव बेटर देन अ रेगुलर पर्सन. Definitely. And government is allowing everyone to have driving license except deaf community. So that's a point to be noted, I would say. एक चीज आपसे बात में करना है, आप क्या मुझे साइन लैंग्वेज थोड़ा सिखा सकते हो? Yeah, definitely. Like what do you want to ask? आप बताओ, या तो फूड फार्मर या ABCD बता दो. बताओ ABCD करना है? Like ABCD, yes, you can start with the base. It's A, B, yes, C, D, it's E, yeah, F, yes, G, H, I, J, 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 J. J. This side. You have J. J. K. Yeah. Oh, अच्छा. Yes. L. M, N. Yes. O. P. Q. Yeah. R. S. T. U. V. W. X. Y. Y. Yes. Not from inside, from the outside. This side. Yes, Y. Z. Z. So this is the alphabets in Indian Sign Language. That's amazing. थोड़ा practice लगेगा आपको बार-बार ABCD सीखने में. And 1, 2, 3 is like yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Yeah, 9. Perfect. 9. 1, 0, 10. And then you can continue. 11, 12, 13. तो almost same I think 7 और एक दो नंबर अलग है. कुछ 7 different होता है, जैसे normally कई लोग करते हैं 6, 7, 8, 9, 10. So instead of that it's 7 and 8 is again this 8, 9, that kind of thing.
Yes. So is this called essentially Indian Sign Language? This is not the only part. मतलब there's a lot to it as well. And जैसे I'm a CODA, right? Child of Deaf Adult. तो I have not gone through that Indian Sign Language का proper certification. For example, जैसे कोई अगर मारवाड़ी फैमिली में पैदा हो रहा है तो they don't learn मारवाड़ी by going to any school. वो अपनी फैमिली में सुनते सुनते बोलते रिपीट करते हैं. Similarly, मैंने भी अपने पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखा एंड आई हैव लर्नड इट फ्रॉम देम. दैट्स व्हाई आई एम एबल टू अच्छे से बात कर पाता हूँ साइन लैंग्वेज में. अदरवाइज ISL अगर बात करो तो आई हैव नॉट गॉट एनी सर्टिफिकेट लाइक मी एंड माय सिस्टर बिकॉज वी आर कोडा, सो वी डोंट हैव दैट. सो बट स्टिल वी नो द बेसिक्स जो भी होता है इंडियन साइन लैंग्वेज के. सो या तो आप मुझे साइन लैंग्वेज में 2-3 और चीज़ सिखा दो जो मैं ये पूरे एपिसोड में यूज़ करूँ, बाद में भी यूज़ करूँ. कि थैंक यू कैसे बोलते हैं, हेलो कैसे बोलते हैं, 2-3 और चीज़ सिखा दो. थैंक यू. और हेलो कैसे बोलते हैं? हेलो, हाँ, ओके. हेलो, यू कैन से Hello? हेलो एंड थैंक यू. इट्स लाइक थोड़ा लिप सिंक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके. आर दे एबल टू लिप रीड? लाइक जो मैं बोल रहा हूँ, कैन दे सी माय लिप्स एंड अंडरस्टैंड जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं, मोस्ट इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. मतलब सब लिप रीडिंग नहीं करते हैं. लिप रीडिंग भी सीखनी पड़ती है, जो अगेन आई पॉइंटेड आउट अर्लियर, राइट, कि अगर टीचर ओरलिस्ट अप्रोच भी ले रहा है लिप रीड सिखाने के लिए तो वो देख के उधर बात कर रहा है तो बच्चों को नहीं पता चल रहा कि लिप रीडिंग भी क्या होती है. सो इट्स वेरी डिफरेंट कि घर पे अगर अलग से जाके मेहनत करके सीख रहा है तो पीपल डू लिप रीड, लेकिन इन मेनी केसेस इट्स कम्प्लीटली साइन लैंग्वेज. एक पॉइंट इसमें और भी आ सकता है कि जैसे कोविड के टाइम पे इट्स नॉट पॉसिबल कि फॉर डेफ पीपल टू लिप रीड बिकॉज मास्क लगा हुआ है. एंड अगर अपन फ्यूचर का प्रोजेक्शन देखें गिवन कि एयर पोल्यूशन का कंडीशन, अगर लोग वापस अपना मास्क लगा रहे हैं तो अगेन डेफ कम्युनिटी के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो लिप रीड कर पाए जो कर भी पा रहे हैं. सो इट्स वेरी नेसेसरी कि साइन लैंग्वेज हो लोगों के पास ऑप्शन. अगर ये कहीं जा रहे हैं काम के लिए, इंडिपेंडेंटली जाना चाहते हैं तो वहाँ पे लोगों को पता हो साइन लैंग्वेज, क्योंकि लिप रीड इज नॉट पॉसिबल. गॉट इट. क्योंकि मास्क अगर कोई पहना है तो कैसे कोई लिप रीड करेगा? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट. ऐसा क्यों होता है कि जब कोई डेफ होता है वो काफी अक्सर म्यूट भी होता है? ये मुझे पता है, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. नो, बिकॉज इट इज हैंड इन हैंड थिंग. मतलब अगर आप सुन नहीं पा रहे हो तो आप बोल भी नहीं पा रहे हो. अगर आप बचपन से नहीं सुन पा रहे हो कुछ तो यू डोंट नो द लिप पोजिशनिंग एंड ऑल दैट थिंग. लाइक इफ इन हिज केस ही हैज अ वॉइस, राइट, एंड मम्मी की भी आवाज आती है. जैसे अभी पापा नंबरिंग आपको बता रहे थे तो ही वाज 2 3. यस, सो वो काफी सिंपल लिप पोजिशनिंग वो होती है बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन जस्ट बिकॉज अब वो सुन नहीं पा रहे हैं तो ही डजंट नो कि इसको कैसे आर्टिकुलेट करना है, कैसे अपनी पोजिशनिंग करनी है. तो उसकी वजह से वो बोल भी नहीं पाते हैं. जैसे अगर वो ABCD पापा बोलते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ABCD क्लियरली आ रहा है. हाँ. लेकिन एट सर्टेन पॉइंट जो थोड़े डिफिकल्ट अल्फाबेट्स होते हैं वहां पे सही नहीं आती है. तो इट हैपेंस बिकॉज आप सुन नहीं पा रहे हो तो आप बोल भी नहीं पाते, क्योंकि यू डोंट नो. अगर आप हेडफोन लगा के कुछ कर रहे हो तो यू डोंट नो कि क्या बोल रहा है सामने वाला, अगर आपको लिप रीडिंग नहीं आती है तो. सो दैट्स द. बट व्हाट अबाउट पीपल जो मे बी लाइक इन योर डैड केस, वो बर्थ से या 1 year old से ही वो essentially deaf थे. Yes. लेकिन अगर कोई suppose 20-25 साल या कोई older age में they stop hearing, yes, so can they speak because उन्हें 20 साल? yes they can. that's why मतलब फिर ओल्ड एज में काफी सारे लोग हियरिंग मशीन लगाते हैं. यू मस्ट हैव सीन, राइट, कि लोग एक मशीन लगा के रखते हैं. उसकी वजह से बिकॉज दे हैव ऑलरेडी देयर उनका जो भी लर्निंग प्रोसेस था, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग, सारा ऑब्जर्वेशन सब उनको पता है. एंड इट्स जस्ट उनका हियरिंग का कम हो गया है वो चीज. तो उसकी वजह से दे स्टिल नो कि वो क्या बोल रहे हैं लेकिन वो उनके कान में नहीं जा रहा है. दैट्स द थिंग. Got it. इन कंप्लीट डेफ केस मतलब अगर आप बाय बर्थ डेफ हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इन फ्यूचर अगर आपको होता है डेफनेस का तो इट्स स्टिल वेरी मैनेजेबल. मुझे जानना है कि जो डेफ होते हैं उनका एक्सप्रेशंस क्या बहुत मैटर करता है? लाइक हाउ यू यूज योर आईब्रोज, योर लिप्स, योर एंटायर थिंग, एक्सप्रेशंस क्या एनहांस्ड होते हैं? एंड डज दैट हेल्प यू कम्युनिकेट एसेंशियली? मतलब यस इट इज काइंड ऑफ हमारी फैमिली में काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है मतलब बात करने में, जस्ट बिकॉज एक्सप्रेशंस या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जेस्चर में हो जाती है. तो इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इट्स अप टू पीपल लाइक कोई लोग काफी एक्सप्रेशन यूज करते हैं एंड इट्स वेरी नेचुरल. यू डोंट फोर्स एक्सप्रेशन, राइट. अपन नेचुरली बात करते हैं तो स्माइल, आईब्रोज ऊपर नीचे होती है. तो
जैसे पापा के केस में, मम्मी के केस में नेचुरली होता है एंड इट्स नॉर्मल, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काफी स्ट्रेट फेस रखते हैं बात करने में, तो इट्स हार्ड टू नो कि वो गुस्सा है, शांत है. तो यस, एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इफ यू आर शॉक्ड की देन योर आईब्रोज आर लाइक ओ ओके दिस इज द थिंग, एंड अगर आप कुछ ऐसा बता रहे हो एंड आई एम लाइक ओके, तो यू डोंट नो इफ आई एम शॉक्ड और नॉट बाय दिस थिंग. तो आप आवाज भी जब व्हेन यू से समथिंग आल्सो बिटवीन जस्ट रेगुलर पीपल टॉकिंग, इतना मुश्किल होता है कि क्या वो पर्सन गुस्सा है, क्या वो पर्सन इज sarcastic और व्हाट इज इट. तो आपको एक्सप्रेशन से आता है. अगर कोई बात नहीं कर रहा है और फिर वो तो और भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते होंगे. Yes, so आप उसी एग्जांपल से देखो तो इट्स ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेफ लोग, मतलब अगेन वो फिर वेरी करता है पीपल टू पीपल कि कौन एक्सप्रेशन यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि इट्स नेचुरल थिंग. So what should Indian workplaces do to improve the lives of the deaf community? ऐसा क्या कर सकते हैं इंडियन वर्क प्लेसेस ताकि आप लोग सब लोग को ज्यादा इंक्लूसिव फील हो, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए? सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग कि जैसे वर्क प्लेसेस में भी क्या होता है, पापा के ऑफिस में भी पीपल डोंट नो साइन लैंग्वेज, तो ही इज़ लाइक कि चलो बस काम की लिख के बात कर को बता दो एंड देन ही इज़ बैक ऑन अपने काम पे. तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि बस वो आते हैं, काम करके चल जाते हैं. वो एक वर्क इन्वायरमेंट का जो भी सोशलाइजेशन, डीलिंग, इंटरेक्शन होता है वो कुछ नहीं होता है किसी के साथ भी. जो नॉर्मली अगर अपन यहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं तो वी टॉक, वी लाफ, वी टॉक अबाउट एनीथिंग, लेकिन इनके केस में नहीं होता है. ही इज़ जस्ट अलोन बाय हिमसेल्फ. अगर कोई डेफ इंसान नहीं है जिसको साइन लैंग्वेज आती हो तो इट्स लाइक दिस. So people जब आपको काम देते हैं वो यूजुअली आपको राइटिंग में देते हैं कुछ, यस, और आप वो लिख करके कम्युनिकेट करते हैं. यस, ही लाइक कोई भी क्वेश्चन आया या वो मांग रहे कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट, ये फाइल या इसका कुछ अकाउंट, तो ही इज लाइक ओके, ही अंडरस्टैंड्स इट एंड देन गिव इट to the person. Do people who are in the deaf community, do they usually carry a paper pen around or to communicate all the time, or like how does it work? Yeah, it's like convenience है. लेकिन पापा तो कैरी करते हैं हमेशा कि उनको पता है कि कुछ काम हो तो मेरे को अगर बताना हो तो he carries a pen paper with himself. बाकी कई लोग नहीं करते होंगे क्योंकि अगर अपन मेजॉरिटी की अगर कंसिडरेशन करें तो people don't know कि how to read and write, तो they don't carry anything. Also, you're saying majorly people don't know how to read and write? बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, राइट. अगर वो उनको स्कूलिंग भी जा रहे हैं तो वहाँ पे स्कूलिंग में ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि वो इतना केपेबल हो कि वो खुद से पढ़ लिख सकें. दे आर जस्ट टॉट हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट. सो दैट्स द प्रॉब्लम. That is very sad. So at least in my opinion, जो मुझे आपसे बात करके लग रहा है, at least इतना basic हमें as an Indian society, as government and everything, we should ensure कि at least the deaf and mute community at least can read and write. Exactly. So can you tell me how do movies work for the deaf community? क्या आप लोग movies देखते हो? क्या subtitles use करते हो? And can you tell me more about this? अगर एजुकेटेड है तो वो तो सबटाइटल पढ़ सकता है, लाइक पापा कैन अंडरस्टैंड न्यूज एंड ऑल सब चीज. लेकिन मेजॉरिटी अगर वही अगेन दैट्स अगर अपन स्टार्ट से बात करें, स्क्वायर वन पे हैं, तो वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही कि पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही, तो वो आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे सॉल्व. So जब घर पे जब देख रहे हो, then do you keep pausing कि Yes. आप सीन पॉज कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, सीन पॉज कर. यस, दैट हैपेंस. मतलब जैसे कुछ होगा कि समथिंग सीरियस हैपेंड एंड वी आर लाइक नहीं एक बार पॉज करो एंड देन वी टेल देम कि अच्छा ये हुआ. सो या दैट हैपेंस. I had read somewhere that the government ने चालू किया एक टीवी चैनल 31, जहाँ 24/7 वो पूरा टीवी चैनल essentially साइन लैंग्वेज में है. So have you heard of that? Do people in the deaf community watch that? नहीं, इट्स ओनली दूरदर्शन जो संडे पे कुछ एक लाइक 15 मिनट्स, आधे घंटे का कुछ होता है वीकली संडे को, जो पापा ने देखा है. संडेज, एवरी संडेज. और लाइक एनी नेशनल हॉलीडे लाइक 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, तब एक ट्रांसलेटर होता है न्यूज़ चैनल्स पे भी. अदरवाइज डे टू डे न्यूज़ कोई भी प्राइवेट चैनल पे इंडिया में तो आई डोंट थिंक कोई ट्रांसलेटर होता है. So is someone like a Charlie Chaplin जो ना ही कोई डायलॉग लेता है, प्योरली विजुअल है, is that popular, like is he popular amongst the deaf community? Yes, he used to watch them, watch him a lot.
क्योंकि वो सारा जोक एंटरटेनमेंट होता था, इट डिडंट इन्वॉल्व एनी वॉइस और समथिंग लाइक दैट. तो मतलब in his circle everyone enjoyed that Charlie Chaplin वाला thing. Like Tom and Jerry, like मम्मी तो अभी भी कई बार देखती है Tom and Jerry because it's so fun. तो that's like evergreen thing. अब कोई भी स्टोरी टेलिंग हो गई, कोई भी पिक्चर हो गई नॉर्मल जो इन जनरल होती है, वो बहुत रेयरली देखते हैं. जो भी चीज़ एंटरटेनमेंट में जो वॉइस इन्वॉल्व नहीं करता है, सो दैट्स द ओनली सोर्स जो रहता था मेजरली. Do you think Bollywood and in the Indian movie industry have they done a good job in representing deaf people? बॉलीवुड इंडस्ट्री इंडियन वो मूवी इंडस्ट्री में तो नहीं हुआ है, लेकिन देयर इज अ प्राइवेट बॉडी जो ISH न्यूज़ है, जो डेफ कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है. ISH न्यूज़, देयर आर सर्टेन यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर आपको कोई मूवी देखनी है जिसमें मेजॉरिटी पोलिंग आती है, दे गेट द अप्रूवल फ्रॉम द जो भी थिएटर वाले होते हैं पीपल, दे गेट द अप्रूवल एंड दे ट्रांसलेट दैट इंटायर मूवी. मतलब जो भी 3-4 घंटे की मूवी होती है, एक एक ट्रांसलेटर अपना पार्ट करके जाता है, एंड देन एक दिन सिलेक्ट होता है फॉर स्क्रीनिंग, एंड देन द डेफ कम्युनिटी कैन गो देयर एंड एंजॉय द मूवी विद द ट्रांसलेटर. सो इट्स लाइक नॉट अवेलेबल विद एवरी मूवी. लाइक नॉर्मली तो सारे दो ऑप्शन होते हैं सबटाइटल्स के एंड ऑल. लाइक संडे को भी एक स्पेसिफिक डेट होती है, आपको उस दिन आना है. अगर नहीं है, क्योंकि इट टेक्स मनी टू स्क्रीन ऑल दोस पिक्चर, तो एक दिन सिलेक्ट होता है, 1 या 2 दिन, उसमें अगर आप आके देख लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद नहीं होती वापस वो स्क्रीनिंग. तो उन्होंने एटलीस्ट एक इनिशिएटिव तो लिया है कि आप डेफ कम्युनिटी के लिए एक दिन सिलेक्ट करके उनके लिए ट्रांसलेट करके कर रहे हो, बट डेडिकेटेडली मूवीज इंडस्ट्रीज के साथ तो नहीं हुआ है ये. What do you think? I don't know if you've seen, but have you seen movies like Barfi, which had like a character in the movie which was deaf and mute? Do you think they did justice to the deaf community there? No, it was decent. They didn't go a lot into the deaf वाला thing. It was just कि वो बोल सुन नहीं सकता था and वो lip sync करके बात करता है, so वो अपना dedicatedly deaf community के लिए नहीं था, but it was a movie जो enjoy कर सकते थे deaf लोग. That kind of thing it was. Got it. So आपका favorite movie कौन सा है? Black करके एक movie है. Oh, रानी मुखर्जी है, अमिताभ बच्चन. Bollywood movie है Black and Barfi. Okay, Black is the one majorly, and the Barfi is also there. The Black मेरे को भी याद नहीं है कौन सी मूवी है. No, of course, it's an iconic movie with Amitabh Bachchan and. Yes, that one. So अब मुझे like आपसे डिस्कस करना है, अगर कोई ये if this video is being watched by someone जो deaf कम्युनिटी से है, चाहे उनके फैमिली मेंबर डेफ हो या वो खुद डेफ हैं, सो आप क्या उन्हें एडवाइस करोगे? Like what should they do? What type of I'm sure you're not a doctor, but even then whatever your experience has been, आपने कोई कभी बोला hearing aid and cochlear implant, so can you just talk more about that entire journey? एकदम पहले simplify करिए कि cochlear implant क्या होता है, hearing aid क्या होता है. Hearing aid is just like आप एक चश्मा लगा रहे हो अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, and cochlear implant is laser treatment अगर आपको visual नहीं होता. It's a permanent solution कि आपने cochlear लगा लिया, invasive surgery, and hearing aid is just like कि अगर आपको पास का नहीं दिख रहा है तो आपने चश्मा लगा लिया, और अगर on the other hand अगर आपको पास ऑपरेशन करा रहे हो उस चीज के लिए, तो आप you're going for a permanent solution for so that. Hearing aid is almost like a chashma. Yes. Yes. And a cochlear implant is more like a surgery. Yes. Which is a permanent solution. Permanent surgery. It's like a very sensitive and you can say पूरा कान का अपना कट होता है एक piece, and अंदर मशीन लगती है ब्रेन में, and the lifestyle completely gets different. The whole trajectory is different with cochlear implant, क्योंकि एक तो आपकी वायरिंग एंड ऑल पूरी ब्रेन तक जा रही है, एंड क्या कहते हैं, इट्स वेरी सेंसिटिव एज वेल, एक्सपेंसिव एज वेल. हियरिंग एड्स आर आल्सो एक्सपेंसिव, बट दैट स्टिल आप जो उतार पहन सकते हो बार बार. या सो कैन यू क्या एज के लोग के लिए हियरिंग एड सही होता है, या क्या एज के लिए कॉकलियर इम्प्लांट ठीक होता है? Is cochlear implant only for those cases where you find out very early?
it's on to the parents basically कि if firstly they can afford or not, and the best thing अगर आप सबसे पहले उसको diagnose कर लेते हो कि the child is deaf and mute, तो cochlear is the best solution, क्योंकि you know after getting the cochlear implant as well, उसके बाद भी जो फॉलोइंग ट्रीटमेंट होता है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इंडिया में आई डोंट फील ऐसा होता है, क्योंकि उसके बाद जो स्पीच थेरेपी चाहिए होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट चाहिए होती है, थेरेपी काउंसलिंग चाहिए होती है, वो प्रोसेस नहीं होता है. गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट इनिशिएटिव कि वो कॉक्लियर इम्प्लांट लगा रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट, लेकिन आई एम नॉट श्योर वो दे आर मेकिंग श्योर कि आगे का जो प्रोसेस है स्पीच थेरेपी काउंसलिंग का वो होता है विद द पेरेंट्स एज वेल, वो भी नेसेसरी होता है. अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊं मैं कि इट्स लाइक कि अगर आपके 3 4 5 साल की एज में कॉक्लियर लग रहा है, हाँ, तो अगर आपके 3 4 5 साल की एज में कॉक्लियर लग रहा है, तो पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अभी वो एकदम इमीडिएट बात करना चालू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो हियरिंग कैपेबिलिटीज है आर नाउ अगेन बैक टू स्क्वायर वन, जो एक छोटे बच्चे की 3 4 महीने की होती है कि वो आवाज सुन के चमक जाता है या डर जाता है, रोने लग जाता है, कुछ भी आवाज आती है, तो अब उसकी वो आवाज चालू हुई है एट द एज ऑफ 3 और 4. इट्स लाइक कि अगर आप अभी मैं आपको आपके बचपन से 3 4 साल तक कॉक्लियर नहीं था एंड अब लगा है, एंड अचानक से आपको सारी आवाज आ रही है, यू कांट बाइफरकेट डिफरेंशिएट कि कौन सी आवाज को इग्नोर करना है, कौन सी नहीं करना है. इट्स फॉर देम इट्स जस्ट लाइक कि मैं आपके टिन के डब्बे में पत्थर लगा के कॉन्स्टेंटली कान के पास बजा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली. सो इट्स लाइक दैट, एंड पेरेंट्स थिंक कि अरे ये बात क्यों नहीं कर रहा है, तो ये तो सोल्यूशन सही नहीं हुआ. दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके बाद का जो फॉलोइंग प्रोसेस होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉन्स्टेंटली आप नहीं पहन सकते हो, धीरे धीरे आपको उसको स्केल करना होता है. वो चीज़ बहुत, उसमें भी एजुकेशन की, सेंसिटाइजेशन की जरूरत है पेरेंट्स को, एंड बच्चों को भी, एंड उस तरीके के प्रोविजंस भी जरूरी है. पापा ने जब एक बार ट्राई किया था कॉक्लियर का, लाइक व्हेन ही वाज 5, तो हियरिंग एड ट्राई किया था एट द एज ऑफ 5, क्योंकि इट वाज नॉट कंफर्टेबल इन हिज केस, क्योंकि बच्चों को तो भागना दौड़ना होता है, तो इट वाज समथिंग डिवाइस लाइक जो आपके यहाँ पे हैंग होता है, एंड वो आपका एक तरह से रिसीवर काइंड ऑफ थिंग होता है, एंड कान में आपके फिर वही ईयरफोन्स की तरह लगता है. इट्स लाइक एन एम्पलीफायर, आप इधर से आवाज आई एंड वो कान में गया, लेकिन वो अब क्या है, भागा दौड़ी में गिर जाए, लग जाए, बहुत अजीब लगता था. इट्स लाइक आप एक पानी की बोतल जैसे छोटे बच्चे लगा के पूरे दिन भाग रहे हैं, दैट्स एन एग्जांपल यू कैन टेक. तो इट्स नॉट कंफर्टेबल बच्चों के लिए, दे डोंट वांट कि अरे मेरे को कुछ चाहिए, तो वो हटा के उसको छोड़ के वापस अपने खेलने में लग जाते हैं. करेक्ट. तो आप बोल रहे हो कि जितना जल्दी हो पाए उतना बेटर है ये सब सॉल्यूशंस, हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने के बाद उसके नेक्स्ट 2 3 years 4 years 5 years क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या ट्रेनिंग मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, एग्जैक्टली. So is there any process जो गवर्नमेंट आपको क्लासिफाई करता है कि ये आपका एक डेफ सर्टिफिकेट है, एंड इज दैट इजी टू गेट और नॉट? फर्स्ट व्हाट हैपेंस इज कि लाइक एक पोस्टिंग आती है कि ठीक है आपकी एक जॉब पोस्टिंग है रेलवे में, इधर इधर ऐसा ऐसा, फॉर दिस रिजर्वेशन, दिस कैटेगरी. सो आप ये अगर डेफ में आते हो तो आप डॉक्यूमेंट्स लगाओ, एंड ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड देन एग्जाम देके यू अप्लाई. If you score beyond a certain level, then you are selected and not. So once they know about this, then वो अपने documents check करते हैं. If they don't have that deaf verification, वो certificate, then वो अपने एक centralized hospital, जैसे दे आस्क कि अच्छा आपका जयपुर में एरिया है, अजमेर या इतना इतना इस रेंज में है, तो आप इसी वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो रिकग्नाइज्ड है उससे ही सर्टिफिकेट ले सकते हो. सो दैट रेंज इज़ वेरी ह्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अगर अजमेर में, आई नो माई मौसी इज लिविंग देयर एंड माई ब्रदर एंड ऑल, वहाँ पे उनका डेथ सर्टिफिकेट का कोई आई फील वहाँ पे नहीं है. दे हैड टू इनिशियली व्हेन शी वाज यंगर, माई मौसी, उन्होंने यहीं से अपना सर्टिफिकेट मंगा के देन शी मूव देयर, वहाँ पे अपनी जो भी इंसेंटिव्स एंड ऑल उसका यूज करने के लिए. सो दे हैड टू ट्रैवल हियर, एंड दैट प्रोसेस इज आल्सो नॉट वेरी इजी. तो आपने शायद से बोला कि पूरे राजस्थान में खाली एक ही जगह है जहाँ डेफ सर्टिफिकेट मिलता है. There might be 1 or 2, not beyond. Like every city has their own centralized government recognized body, लेकिन majorly it's like chunks में, बड़े बड़े chunks में है. Major is which we know of is वही वाला जो SMS जयपुर में है. So around people living around Jaipur and close to that,
also have to come there only. Like in his case, when he applied and took the appointment, around 15 days, 25-30 days ऐसा कुछ एक रेंज याद बता रहे हैं वो. तो उस रेंज के बाद उनको फिर वहाँ पे जाना था अपॉइंटमेंट ले वापस टेस्ट करवाने के लिए. Got it. Basically, I understood कि it's a very complicated process. Can you share maybe any sad incidents जो रेगुलर लोग हैं वो समझ में नहीं पाए कि आप लोग को ये फेस करना पड़ता है? सबसे पहले तो एक कम्युनिकेशन का होता है कि इफ दे वांट एनी असिस्टेंस और समथिंग लाइक दैट, सो दे डोंट टेक देम सीरियसली कि अच्छा हेल्प चाहिए रहे इसको, तो दे जस्ट लाफ इट ऑफ कि अगर इज ट्राइंग टू टॉक रिगार्डिंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम काम के अलावा, तो दे आर लाइक अरे इसको ऐसे मतलब निपटा देते हैं कि दे आर लाइक क्यों सीरियसली रहना है. सो दैट्स अ थिंग जो वर्क प्लेस में ही फेस्ड अ लॉट. तो दैट्स वन थिंग जो काफ़ी लोग नहीं इतना समझते कि दिस इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड फॉर देम. Any one particular incident that you can remember? When it was in a work setting only, मतलब all the colleagues and all were talking regarding something and he was interested कि क्या बात हो रही है, कुछ मतलब senior officer कुछ थे शायद, तो he asked his colleague ki what they are talking about. Okay, so because of certain things he knew कि इस kind of की बात चल रही है, लेकिन जब वो अपने colleague से पूछने की क्या बात हो रही है, they just नहीं वो काम की बात है, कुछ ऑफिस क्या है and कुछ ऐसा नहीं है, and कुछ अगर बताया भी तो it didn't make sense कि जो वो पापा को लग रहा था. So he's like they don't know what's happening in the workplace. जो अपन कई बार बैठे बैठे वहाँ बात हो रही होती है, सुन लेते हैं, then we go, अपनी knowledge भी बढ़ती है या अपना learning process भी जो बढ़ता है, वो चीज़ भी उनका खत्म हो जाता है क्योंकि they don't know what's happening around them. And the people are also not considering कि we should let them know कि what they are talking about. So if they even ask कि क्या कहते हैं कि what they are talking about, you might tell them a different thing, that person is telling him a different thing. So because there is no standard thing, वो अपनी मन से कुछ बना के just to इसको टालने के लिए कि it's not important kind of thing. So he has faced in his work setting this thing. मतलब he can't trust anyone जो भी वो बोल रहे हैं. He's like अच्छा ऐसा है, ठीक है, okay fine. मतलब he knows कि खाली बस बोलने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ just to चुप कराने के लिए कि हाँ बस ये बात थी ताकि पूछे ना बार बार. That kind of thing is really saddening, I would say. And like there have been instances कि like कोई अगर आके बात कर रहा है तो it happens कि everyone's someone said something and पापा देख रहे थे उनकी तरफ and everyone looked at him and वापस देख के हंसने लगे. So it feels very bad कि मतलब पता नहीं मेरे बारे में क्या बात हो रही है, क्या बात पे हंस रहे हैं. So that's a thing जो पापा ने face किया हुआ है अपने काम में at different places, because now he doesn't know कि अब क्या बात हो रही है, is it because of my deafness और ये वो, तो वो मजाक बना रहे हैं and he doesn't even know. Because it's just cues ना कि they looked at me and then they turned back and they are laughing. Yeah, it can be very insulting. That's something which happens. So he knows, he gets from inside he's like he can't do anything about it. It's not just with him, it's with every deaf person. Like they don't know what if there's another person standing here, we are talking about him or her, that person doesn't know. So yeah. हाँ, जैसा आई मेंशन कि लाइक पब्लिक को पता भी नहीं होता कि डेफ एंड म्यूट का ऐसा कुछ होता है कि लाइक पीपल आर डेफ एंड म्यूट. हम जब सड़क पे जाते हैं, कई बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ऑटो कैब में, कार में, हम बात कर रहे होते हैं लाइक मम्मी पापा मैं दीदी कुछ भी साइन लैंग्वेज में, तो पीपल जस्ट स्टेयर एट अस कि भाई ये पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसे उनको लगता है कोई एलियन भाषा में बात कर रहे हैं एंड दे जस्ट स्टेयर एट अस कॉन्स्टेंटली कि भाई क्या हो रहा है. मतलब अगर इफ समवन इज टॉकिंग इन मारवाड़ी राजस्थानी ऐसे, दे डोंट केयर, दे नो कि हाँ फेमिलियर है, बट साइन लैंग्वेज देखते ही दे आर लाइक ये क्या है. मतलब इट्स वेरी थिंग कि मतलब उनको पता ही नहीं है कि साइन लैंग्वेज भी कुछ होता है. सो वी इवन इफ वी लुक बैक एट देम कि हम बोलते हैं मतलब वी स्टेयर एट बैक एट देम कि व्हाट आर यू डूइंग, दे स्टिल आर स्टेयरिंग कि पता नहीं क्या कुछ तो क्रेजी कर रहे हैं. So they are almost like looking at you as an alien yourself. Yeah, exactly. मतलब a lot of people have looked at us in that sense. जब आप लोग कोई हॉस्पिटल में जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइक सपोज किसी को हार्ट इशू हुआ, लंग इशू हुआ, तो हाउ इज इट, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर को तो साइन लैंग्वेज आता ही नहीं है. सो पापा के केस में तो ही कैन राइट, सो ही टेल्स हिम कि और हर कि ये प्रॉब्लम है.
लाइक कफ कोल्ड जो होता है वो तो चलो ही नोज की तो ऐसा प्रॉब्लम है वो समझ जाते हैं, बाकी जो सब काफ़ी डिफरेंट होता है कुछ केसेस में कि ये तो पहली बार फेस किया है, तो वो फिर या तो बचपन से अभी तक तो हमने क्या किया है कि इट वाज मी माय सिस्टर जो हर जगह जाते थे, फैमिली फंक्शंस, बैंक्स, हॉस्पिटल, आई मेंशन्ड इट अर्लियर एज वेल, सो इट वाज अस एंड फॉर देम वी वर अवेलेबल। लेकिन जो अगर बाकी लोगों की मेजोरिटी की अगर बात करते हैं, दे हैव टू फाइंड समवन अगर जिसको साइन लैंग्वेज आती हो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली वो बंदा विलिंग है कि नहीं ट्रैवल करने के लिए, इफ दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम फार डिस्टेंसेस, कि अगर कोई 100-150 किलोमीटर से आ रहा है हॉस्पिटल में कोई अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए लेट्स से, तो वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर भी नहीं है उनके लिए जो कॉमनली हो कि वो इंडिपेंडेंटली एक डेफ इंसान आके बात करके समझा सके एंड गेट द सोल्यूशन, वो फैसिलिटी भी नहीं है। मतलब वहाँ पे भी जो लोगों क्लर्क्स को या जिनको साइन लैंग्वेज आती होगी इज जस्ट वही थोड़ा ऊपर ऊपर से कि क्या हुआ ये वो ऐसा ऐसा, बस नॉट प्रॉपर दे कैन नो व्हाट द कंसर्न इज एंड ऑल, सो दे हैव टू गेट समवन अलॉन्ग विद देम। एंड अगर वो जो प्रोसेस होता है सर्टिफिकेट का जो मेंशन कर रहे थे अपन, उसमें इट्स लाइक इट्स नॉट वन टाइम प्रोसेस, आप एक बार आके सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं होता। आप अपॉइंटमेंट पहले लेते हो, डॉक्टर अवेलेबल होता ही नहीं होता, वो उस दिन पे फिर वो छुट्टी लेता ही नहीं लेता, देयर आर मल्टीपल विजिट्स जो आपको लगते हैं, एंड इफ समवन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फार डिस्टेंसेस इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर देम, एंड उस हर बार उनको एक साथ में इंसान लाना पड़ेगा जो कम्युनिकेट कर सके उनके बिहाफ पे, सो दैट्स अ मेजर इशू दैट गवर्नमेंट should look into, and good part is कि they are having incentives for deaf people, कि अगर आपके पास certificate मिल गया, so there are financial incentives which you can take advantage of, so that's the good thing about it, but the process to obtain it is very difficult. Like अब वो थोड़ा बहुत अपने जेस्चर से जितना कर सकते हो समझाता है, डॉक्टर इज ऑल्सो लाइक हाँ ठीक है समझ गया, अब दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि इफ दे गॉट द पॉइंट और नॉट, so whatever the doctor tells, so they have to accept it, कोई सोर्स भी नहीं होता है, very difficult thing unless you have a very strong interpreter, it's very difficult. like he can trust me definitely, लेकिन अगर कोई इंसान किसी थर्ड पर्सन को ला रहा है तो they don't know, there are instances जब हम और छोटे थे तो एक किसी और इंसान को बीच में करना पड़ता था जो फेमिलियर नहीं था, लेकिन कोई और सोर्स नहीं होता था, तो they have to use that person to translate, and there have been instances की जिसकी वजह से he felt कि नहीं something was off, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, he added something or removed something and then उसने communicate किया, so it's also important कि एक reliable source of translator हो. So आपके केस में of course you had him to rely on and my elder sister and your elder sister, but जो बाकी deaf and mute people हैं, अगर उन्हें अपनी immediate family में कोई नहीं है, do they have to hire a translator जो उनके साथ पूरे टाइम जाए हर एक जगह? अब तो चलो फिर भी थोड़ा फोन की वजह से we can do it on video calls and all, पहले we had to take someone in from the relatives or close ones to translate. अभी question क्या? या they do have that option कि आप कर सकते हो, पे करके किसी को ट्रांसलेटर को कर सकते हो, बट वो प्राइवेट फैसिलिटी है, मतलब पीपल आउट ऑफ जो एनजीओज में सब कर रहे हैं उनके बिहाफ पे हो जाता है, जैसे आई मेंशन्ड ISH न्यूज़, दे हैव सर्टेन इनिशिएटिव्स जो इसमें काम करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट हैव एनी सोर्सेज। अगर फिर मेजर बात करें तो पीपल डोंट नो अबाउट दीज चैनल्स, दीज सोर्सेज की इनका लेवरेज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो जब अपन फाइनेंस की बात कर रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, सो उसमें भी डेफ कम्युनिटी को बहुत प्रॉब्लम्स फेस होती है, बिकॉज हमारे केस में अगेन एल्डर सिस्टर ओवर देयर एंड मेरी बहन एंड मैं भी हूँ, तो उसके अलावा अगर बाकी बात करें तो दे डोंट हैव एनीवन विद देम जो इन सब डिस्प्यूट्स के बिहाफ पे बात कर सके, सो दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम जो डेफ लोगों के लिए निगलेक्ट हो जाती है। इफ दे हैव सिबलिंग्स एंड ऑल तो स्टिल हेल्पफुल है वो, लेकिन अगर वो नहीं होता तो हायर करना भी इज ऑल्सो वेरी वेरी रिस्की काइंड ऑफ थिंग, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे आप थोड़ा कर सकते हो क्योंकि दे आर पेड एंड ऑल, दे आर रिलायबल, बाकी यू आर नॉट वेरी श्योर कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन को लेके जा रहे हो तो विल दैट person say the right thing or not. तो आपके बारे में आज काफी बात की है, मुझे एक क्वेश्चन आपके बारे में भी करना है. Yeah, please. So as a translator, interpreter, whatever word you want to use, like I personally feel like your patience level must have really increased. Do you feel like that as well? Like you are a very patient person in other scenarios as well, like with your friends. Do you feel like there are some special qualities in you as well? Regarding the patience, I would say no.
मतलब it's a very hybrid thing kind of a thing. like जब parents के साथ होता है तो it's very मतलब ठीक है, समझ के करना होता है. There have been miscommunication a lot of times as well, but when I'm in a different setting तब मेरा completely different हो जाता है चीज़. तो no, patience level मेरा बाहर अलग है, इधर अलग है. So that's the thing. अगर आप एक चीज कर सकते थे Yes. for the deaf community, what would you do? It can be either you or your dad, like, you know, it can be any. From his side, it's the education wala part, because everything boils down to education. Agar like taking an example of his friend, like his very close friend is there, and वो भी deaf and mute है. Like he was born in Orissa, and then after just एक दो साल में like his family transferred to US. So वहाँ पे उनकी initial 3-4 साल 5 साल पढ़ाई हुई थी, and because वहाँ का infra उस टाइम पे जैसा भी होगा, वहाँ पे वो अपनी basic education जो एक English का learning जो base होता है वो वहाँ से लेके वापस इंडिया है. And he is the most educated, most respected person, because he can the document which I have with me is also given by him ki what from his perspective things are there. So this is the pointers he had given. This was given by his friend only. So again, अगर आपका वो 3-4 साल initial वो education के अच्छे से निकल जाते हैं, so your rest of your entire life gets very easy. Like family aspect हो गया, education हो गया, health, finance, everything. Like they have to rely on a lot of people, like in my dad's case and the rest and all. But in his friend's case, मतलब he is very independent just because उनको एक basic structure पता है बात करने के लिए. English का एक education मतलब वो बोलो तो वो है, so that's why he's very independent on his Got it. So if there's one thing you could do for the deaf community, it would be that every deaf person should be educated. Yes. And that is the only way for them to be independent. Otherwise, unfortunately, they are being dependent on other people. Exactly. So any advice जो आपके पास है for other parents जिनके children potentially deaf हैं? मतलब पूरे इंडिया में जो भी मतलब पेरेंट्स हियरिंग नॉर्मल पेरेंट्स हैं एंड दे गेट टू नो कि देयर चाइल्ड इज डेफ एंड म्यूट, डोंट निग्लेक्ट दैट चाइल्ड कि अरे इसके पास तो ऑप्शन नहीं है. मतलब सपोर्ट एज मच एज यू कैन, एंड बिकॉज आप उनके सपोर्ट से ही दे कैन मेक इट और ब्रेक इट. दैट्स वाई लाइक बिकॉज ऑफ माई मदर्स फैमिली का साइड एंड पापा के जो फैमिली का साइड है उनका इतना सपोर्ट था. दैट्स वाई वी आर they are capable enough to stand on their own, and they have built us like this ki we can represent the entire deaf community. We are here, so it's all because of their parents. Agar parents ka support nahi hota, so again majority mein hi they would have been lacking somewhere. So yeah, he's saying parents ka support and jo involvement hota hai wo sabse zyada important hota hai for any parent who's having a deaf and mute child. Before we wrap up, I have a small gift for both of you. ये है हमारा प्रोटीन पाउडर. Okay. Only what's needed. Okay. तो ये आप लोग यूज कर सकते हो, आप खोल भी सकते हो. Definitely. Thank you so much. So my question was, what can we do differently to help the deaf community understand whatever we've said? Is there anything that we should you recommend us doing to make it easier? One suggestion which I can think of is like agar some deaf person is having this thing, Braille is not related to that. Of course. You can add a QR which leads to a video of someone translating of all the content of whatever it's written or you want so to of course this is of course for the blind community. This we have a QR code जहाँ हम बहुत सारे languages में किए हैं. English, Hindi, Marathi, Gujarati, various languages we've translated our nutrition label. Because our goal was कि nutrition label should not be limited to only people who know English. Unfortunately, in India, only 15 to 20% of people know English. Yes, makes sense. So all the other languages we've translated it, but we realize now that we did not translate it in sign language.
So you are saying कि इसको sign language में भी translate करना चाहिए? Yes, you can have that option just with the same QR, and then the person will have that option ki watch it in sign language, and the video pops up on YouTube or somewhere where that person can, you know, understand this thing. Amazing. We should do that. No, thank you. Hope you like this. Thank you so much, sir. Thank you so much. One last thing before you go. Can we do label Padega India but in sign language? 3, 2, 1. Label Padega India.